गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप यू हैव हैड अ गुड डे। आज राखी का दिन है। आई होप आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। आई ऑल्सो होप कि आज फैमिली से मिलकर आप थोड़ा रिफ्रेश भी हो गए होंगे। सो चलिए आज के राखी के शुभ दिन पे वी स्टार्ट अ न्यू सीरीज। द आइडिया इज वेरी सिंपल हेयर। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई विल इंट्रोड्यूस वॉट सीरीज वी आर ऑफरिंग, आई विल इंट्रोड्यूस वाई इट इज इंपॉर्टेंट, हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हाउ कैन यू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इट। मेरा नाम है राहुल सूरी। वेलकम टू अ न्यू चैनल फ्रॉम एन अकेडमी। वी आर द कैट ट्रैकर्स। हमने ये चैनल इसलिए शुरुआत की है क्योंकि अब आज से लेके कैट तक सिर्फ 97 डेज बच गए हैं। लेट मी रिपीट इट, 97 डेज। मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई काम करता हूँ व्हाट आई डू इज कैलकुलेट बैकवर्ड्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा आज क्या दिन है, देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर इट्स मंडे और इट्स डे -97। वी जस्ट हैव 97 डेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। कैट में वी हैव टू टारगेट 99 परसेंटाइल। आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और उस जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए, आपको थोड़ा सा और पुश करने के लिए और आपके जहाँ पे भी कंसेप्ट्स में आप फंस रहे हैं, इसके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। द सीरीज नेम इज ग्लाइड ओवर। So the series name is Glide Over. The idea is gliding is what a duck does on water. ऐसा क्यों होता है? Because duck is so used to the water. It knows the depth of the water, it knows the temperature of the water, it knows the quality of the water and stuff like that. My idea of naming this series Glide Over is that I want you to become so hands-on, so adept at handling small problems in mathematics, quants, LRDI, that when you challenge yourself with bigger questions, with cat level questions, you are not stuck on the basics. And with practice, you reach that level where the cat paper is expected to be. I am sure कि जो लोग भी cat की practice कर रहे हैं, they all know what LOD 1, 2, 3 is. It has been established over the last few years that LOD 2 is where most of the cat questions lie. If you are able to crack even those questions, you are guaranteed a very high percentile. So the idea is that we help you achieve better results than what you are already achieving. Way we are going to do it is we cover the basics and the intermediate in the same slide, and then at the end of this session we'll take a specific cat question related to the topic, and then we will show you how these concepts or general aptitude can help you crack that question. So this is where we are. Let's go ahead. Before we go ahead, I would like to present a small introduction of myself. So this is me, a cute picture of me, but please don't concentrate on the picture. I'm live here. My background is basically that I have done my MBA from IIT Bombay's Shailesh J Mehta School of Management. Since then, I have been in the banking industry for quite some years. I also want to be very clear and straightforward in saying that in my academic career, I have cracked quite a few competitive exams. I also want to be very clear that I think competitive exams are more about your preparation than what you have studied or your academic credentials. Competitive exams में आपका attitude और aptitude दोनों का टेस्ट होता है. Attitude आपका जो है that is where you excel at competitive exams. Aptitude is your preparation and जो आपके basics build हुए over the years in schools and colleges. So I want you to be very clear that the CAT examination, and for that matter a lot of other competitive examinations, are testing your knowledge obviously, what you have prepared obviously, but the game is about attitude and aptitude. A lot of people would say that this game is played between the ears. आपका जो brain है, how easily you can manage that stress, how easily you can manage those expectations is where the game is. So I would like to share with you my experiences over this series as well. We'll have a different series where I'll tell you how aptitude matters rather than the knowledge itself in both the quant and the LRDI sections. So let's go. आज के लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. So today we are starting with the basics. The idea is very simple. Number systems form the bedrock of mathematics and as such quantitative aptitude. Number systems में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. यहाँ पे मैं आपको स्कूल या कॉलेज का रिवीजन कराने की कोशिश नहीं कर रहा. What we are going to do is being very targeted towards what CAT expects us to do, the kind of questions we are expecting in CAT, and also it is very important to connect these theory with the kind of questions that can come. So इस session, इस series में we will follow a very simple format. We will discuss the theory in a targeted way. We will not go very wide.
we will keep it slightly constrained, we will go deep where it is necessary, but at the end of it we will also discuss one or two questions in every lecture where you can see how this question, this theory plays into the CAT exam. Number systems, आप सबको पता है कि number system is about the various kind of number, how they interact and stuff like that, and then fractions as well. फ्रैक्शंस का जो आइडिया है और जो नंबर सिस्टम का आइडिया है, उन दोनों में कैट में क्वेश्चंस आते हैं. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट द व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज इट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ ऑल द अदर कैटेगरीज इन क्वांट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, मोर इंपॉर्टेंटली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उन सब में फ्रैक्शंस यूज होते हैं और इक्वेशंस अलजेब्रा में नंबर सिस्टम यूज होता है. यू नीड टू बी वेरी क्लियर. बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है. कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि दीज आर इंटीजर्स, पर आदमी उसको रियल नंबर्स कंसिडर कर लेता है, नेगेटिव छोड़ देता है. तो वो जो दिमाग की क्लैरिटी है वो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि यू डोंट मेक दिस वेरी सिली एंड ईजी टू फिक्स मिस्टेक्स. एंड दैट इज वाई वी विल कंसंट्रेट एन आवर और सो ऑन दिस, एंड देन फ्रॉम देयर, फ्रॉम नेक्स्ट सीरीज ऑनवर्ड्स वी विल गो इनटू मोर डायरेक्टली एप्लीकेबल एरियाज फॉर कैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट. वन मोर थिंग आई वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वेरी सिंपली, आज से लेके नवंबर 24 तक 97 days I have planned close to 40 lecture on quantitative aptitude. The idea is that I don't want you to differentiate between studying and practice. Let's be very clear. CAT का जो syllabus है that is quite wide. It goes from class 6 to class 10th. सारी की सारी theory क्या आप revise कर सकते हैं in 97 days में. Obviously आप लोग पहले से prepare कर रहे होंगे, but I want to give you a push. The idea of this series would always be कि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दोज कॉन्सेप्ट समझाऊं, और उसमें द बेस्ट वे टू डू इज मैं पिछले 1 या 2 साल के PYQs आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आपने पढ़ा है वो कैसे एप्लीकेबल होता है, और दूसरी चीज उसमें एप्टीट्यूड कैसे यूज होती है. सो दिस इज वेयर वी आर. लेट्स गो अहेड. काफी इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम काम की बात पे आते हैं. कैट का कैलकुलेटर. The most important thing in CAT quantitative aptitude and LRDI is that this CAT का calculator is not there to help you. Please understand this very clearly. This you should treat it as a distraction. CAT का calculator आप सिर्फ तब यूज करेंगे जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना ही करना है, मैं स्किप नहीं करना चाहता. The idea is to avoid using calculator. Please ये गांठ बांध लीजिए बात को. Calculator is not there to help you. It is as a distraction. It is presented as a distraction. So please try and avoid calculators at each and every stage. And जितनी भी हम सीरीज करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, I'll keep guiding you how to train yourself not to use calculator. And the best way of that is memorizing some values, some tables, squares, cubes. If you have them stored in your mind, it is so easy to solve the problems. Please understand, CAT is not looking for just your calculation ability. CAT is looking how can you simplify that calculation as fast as possible, and that is where your aptitude kicks in. So please, I will request everybody, do not practice on the calculator. Even when you're solving problems, mocks, whatever it is, please avoid using calculator at all costs. चलिए, now we come to the crux of the matter. Number systems आप heading देख रहे हैं स्लाइड की. नंबर सिस्टम्स क्या हैं? देखिए, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट काउंटिंग एंड इट्स ऑल अबाउट शेप्स. अ लॉट ऑफ पीपल विल से इट्स ऑल लॉट अबाउट पैटर्न्स एज वेल. उस पर भी हम आएंगे जब हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री और इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे. बट फंडामेंटली मैथ्स इज अबाउट काउंटिंग. फंडामेंटली मैथ्स इज अबाउट काउंटिंग. अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं, उसको 3 लोगों में कैसे डिवाइड करें? अगर आपके पास 100 स्टिक्स हैं, उसको ट्रायंगल, स्क्वायर बना के हट कैसे बनाएं? इस तरह से लोगों ने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का इन्वेंशन किया है. ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि मैथ्स इज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड. दैट इज लेफ्ट फॉर मैथमेटिशियंस. लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट. So the idea is I want you to take let's say 15 to 20 minutes to just map out what the number system is. नंबर सिस्टम के ऊपर ये जो मैंने ट्री बनाया है उसको डिस्कस करें 1 मिनट में. उस पर कोई आपको कैट की तरह डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि ये इंटीजर है कि रियल नंबर है, इस तरह का. बट वो बहुत सारे एम्बेडेड क्वेश्चंस में होगा. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कई बार ऐसा होता है, लिखा होता है कि दीज आर इंटीजर्स, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर रिलेशन नंबर. और अगर उस टाइम आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया, आपने प्लस माइनस कुछ मिस कर दिया, आपका आंसर फटाक से गलत आ सकता है. और कैट के पेपर सेटर इतने स्मार्ट होते हैं, दे विल कैप्चर दैट बाय गिविंग यू अ फॉल्स इंडिकेटिव ऑप्शन एज वेल.
सो दैट इज द आइडिया हेयर. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल बी डायरेक्टली आस्क कि ये किस टाइप का नंबर है, बट विदाउट दैट building a foundation and then going upwards on quantitative aptitude to a 99 percentile mark will be slightly difficult. So let's spend 15 minutes here. ये ट्री आपको दिख रही है, इट्स अ वेरी फेमस ट्री, बहुत ही सिंपल है ये. सो ऑल द नंबर्स दैट वी आर कंसर्न विद, so all the numbers that we are concerned with are called real numbers. ठीक है, everything. There is another identity which is complex numbers. Complex numbers don't appear in CAT examination, so we will not focus on it. But just for your information, complex is nothing but square root of -1. It is an identity that has been created, kind of imagined. Complex number are also sometimes called imaginary numbers. एंड उसके बहुत सारे यूज केसेस हैं रियल लाइफ में, बट एज फार एज वी आर कंसर्न इट इज नॉट बीइंग टेस्टेड इन द कैट एग्जामिनेशन, सो वी विल फोकस ऑन द रियल नंबर्स. Now real numbers can be divided into rational, irrational, fraction, integer, negative integers, whole numbers, zero, natural numbers. ये आपको देख के लग रहा होगा ये आपने सर ट्री बना दी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. विल जस्ट कम टू दैट फॉर अ मिनट. ये जो इंटीजर्स वाला पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस माइनस में हमको कभी कंफ्यूज नहीं होना है. फ्रैक्शंस जो है इसका ऑपरेशंस भी हम आज सीखेंगे. इसके ऑपरेशन सबसे ज़्यादा काम कहाँ आते हैं? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में. इन दो चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं कैट में, एंड फ्रैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर. उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है. कई बार नंबर सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शंस, और वो फ्रैक्शंस आर समहाउ एम्बेडेड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल. तो जब तक आपको फ्रैक्शन के फंडे क्लियर नहीं होंगे, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले भी याद हैं, कई बार आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन द बेसिक्स टुडे. लेट मी डू अनदर थिंग. ये जो रियल नंबर है, ये जो ट्री है, दिस इज वेरी टॉप डाउन एज यू कैन सी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज वेयर काउंटिंग बिगिंस. एंड काउंटिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि हाउ डू वी बिल्ड दिस. ठीक है, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल बिल्ड द ट्री अपवर्ड्स, रूट टू द leaves. ये देखिए, so this is what we are talking about. What I have written here are listed the kind of numbers that we are going to discuss. Natural numbers. Natural number are basically the human mind can conceive, count 1, 2, 3, 4. That is what natural numbers are. This is the simplest way to think about natural numbers. What comes naturally to human beings. These are what natural numbers are. 1, 2, 3, 4, 5 to infinity. That is the counting method that we have evolved. What are whole numbers? अगर आप 0 लगा दें 1 के आगे, these are whole numbers. आप इसको बोलेंगे whole क्यों? आर्यभट्ट invented 0. It's a very famous fact that most people know. The idea is simply that counting हम कर रहे हैं जब कुछ हो. जब कुछ ना हो, नथिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज वेयर जीरो कम्स इन. सो जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को जोड़ देते हैं, देन वी कंप्लीट द कैलकुलेशन पिरामिड इन द सेंस कि अगर कुछ नहीं भी है, वी हैव एन आइडेंटिटी फॉर इट एंड दैट आइडेंटिटी इज जीरो, एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड होल नंबर्स. नाउ यू विल कॉल व्हाट आर दीज इंटीजर्स. इंटीजर्स आर बेसिकली, यहाँ बीच में एक नंबर लाइन है 0, यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4. So basically you think of it as a number line where 0 is in the middle. On the right are positive numbers, on the left are negative numbers. These go till infinity, these go till negative infinity. So these are called integers. माइनस नंबर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? माइनस नंबर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको कई बार कम क्वांटिटी दिखानी होती है. कई बार हमको, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, हमको कोई पोजीशन दिखानी होती है, बिकॉज वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कोऑर्डिनेट, हमको उसके पीछे जाना होता है. उसके लिए हमको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है. आप पूछेंगे सर दे डोंट अकर नेचुरली. एग्जैक्टली द पॉइंट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर्स आर स्टिल काउंटिंग नंबर्स. थिंक ऑफ देम एज काउंटिंग नंबर्स. देन वी कम टू वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम. प्राइम नंबर्स हम सबको पता है. प्राइम नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड
फुल्ली डिवाइडेड फुल्ली बाय आइदर 1 और देमसेल्व्स। तो जैसे कि नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, 3 जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर। ये आप सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी नंबर से नहीं। देन यू कैन स्टार्ट विथ 5, 7, 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number, 11, right? So these are the prime numbers. Now most of you who have been studying for CAT or have been studying mathematics, आप बोलेंगे सर आपने पहला प्राइम नंबर मिस कर दिया। You are absolutely right, but why did I miss it? The idea is simple, that it is a very unique number, 2. 2 is the only even prime number and that is very important to understand. Even का हमने by definition उसको even has been defined as a number that is divisible by 2 and odd is a number which is not divisible by 2. Please mind जब मैं divisible बोल रहा हूँ I mean fully divisible without a remainder. Please substitute that in. Okay. So 2 is a unique number. It's a unique prime number. It is a unique number in a lot of ways. Root 2 is a special value. In a lot of other equations 2 की पावर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2 की पावर का टेबल, 3 की पावर का टेबल, 5 की पावर का टेबल, दिस शुड बी मेमोराइज्ड इन योर माइंड। अभी हम एक छोटी सी मेमोराइजेशन देखेंगे आगे चल के फ्रैक्शंस में। Returning to the prime number thing, these prime numbers are so important that I would suggest that you do a very small exercise. एक कार्ड पे 1 से लेके 1000 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिख लीजिए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बिफोर गोइंग टू योर वर्क और बिफोर स्टार्टिंग योर डे, जस्ट कीप लुकिंग एट देम एवरी डे। 1 से 100 एक दिन देखिए, 100 से 200 एक दिन देखिए और उसको जस्ट काइंड ऑफ मेमोराइज इट। प्राइम नंबर्स पे 1 या 2 सवाल कैट में आने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं और अगर आपको प्राइम नंबर सारे याद हैं, what you can do is you can get to the crux of the question very easily rather than remembering अरे वो प्राइम नंबर क्या था। So that is my submission to you. मैंने आपको पहले भी कहा इस सीरीज में, कैलकुलेटर को हमको अवॉइड करना है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हम मेमोराइज कर सकें, मैं शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रहा, शॉर्टकट्स पे हम आएंगे, ट्रिक्स पर हम आएंगे, पर अगर आपने ये टेबल्स, पावर्स, प्राइम नंबर्स ये सब मेमोराइज किया हुआ है, then it becomes so easy to actually implement those tricks and hacks and shortcuts. पर अगर आपको ये सब नहीं है तो वो आपके लिए काम नहीं आएंगे पेपर में and they might even take you away from the right solution. So my humble request is roots, squares, cubes, prime numbers, इनके टेबल बनाइए। रोज सुबह 10 minutes before you leave your house, just look at them, or on your way to office just look at them, and that will trigger your mind, start thinking about the last paper that you gave or another question that you thought of, and it will help you memorize also. So please do that. It will save you very 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 crucial seconds. And ये जो crucial seconds है, इसके हम अपने CAT strategy की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि crucial seconds कैसे मैटर करते हैं, क्या strategy होनी चाहिए। I call that strategy S3. For that S3, I'll put up a new video this week, and I hope you will use that video to understand how to prepare for CAT through your mocks as well. So we'll come to that separately. प्राइम नंबर के बाद वो आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर आर वेरी सिंपल, विच आर डिविजिबल बाय 1, दैट सेम नंबर एंड सम अदर नंबर। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज 4. 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 4 and 2, so that is a composite number. Next good example of composite number is 6. 6 is divisible by 1, 6 and 3 and 2, so this is a composite number. These are numbers which can be divisible by more than 2 numbers, which is 1 and themselves. Then we come to co-prime numbers. Co-prime numbers are very very interesting. Co-prime numbers वो होते हैं जो otherwise are composite numbers but don't share a factor. Idea क्या है? Let's say there is a number 8 and let's say there is a number 9. 8 के factors क्या हैं? 1, 2, 4 and 8. 9 के हैं 1, 3 and 9. कोई भी factor except for 1 common नहीं है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, so that is not the point. बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, and that is why this is called a co-prime numbers. Co-prime numbers is also a very interesting property. There are sometimes questions asked in CAT where we have to use co-prime numbers का concept in the identity before we get to the solving the problem. हम उस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहुत कम होता है कि CAT में क्वेश्चन आते हैं, पर जब आएंगे you need this concept, so you have to be prepared for that. को-प्राइम नंबर्स में इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि यू कैन थिंक ऑफ 1 नंबर एंड सेकेंड नंबर, जब उसको ज्वाइन कर देते हैं इट बिकम्स 1 लिंक इस्टेब्लिश करके
प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है. विल कम टू दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल एज वी प्रोग्रेस इन द सीरीज. Then we have even numbers and then we have odd numbers. Even and odd numbers आप सबको पता है, divisible by 2 is even, non-divisible by 2 is odd number. Then we come to the crux of the matter, rational numbers and irrational numbers. Rational and irrational number, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और हम इसके लेके आगे फ्रैक्शंस की तरफ चलेंगे. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? The definition of rational numbers are numbers which can be written in a form of P by Q. That is what rational numbers are. That is what the definition of rational numbers are. But actually rational numbers वो होते हैं, those are numbers which are in decimal form, but either they have a finite stop 0.3572889. Let's say that is a number, that is a stop. या फिर even if there is a recurring pattern, if it is non-stop, there is a recurring pattern. 0.3333, 0.345, 345, 345, 0.345, इस टाइप के नंबर्स को अभी हम देखेंगे. सो द आइडिया इज जिस भी नंबर को आप एक डेफिनेट डेसिमल की तरह लिख सकते हैं, आइदर इट स्टॉप्स एट अ प्लेस और इट इज रिपीटिंग, इवन इफ इट्स नॉट टॉपिंग, बट उसका जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, तो वो डेफिनेट है. दैट नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. दैट इज व्हाट रैशनल नंबर्स आर. और उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? ऑब्वियसली नंबर्स विच आइदर डोंट स्टॉप आफ्टर द डेसिमल और जिनको हम एक पैटर्न रिकॉग्निशन में नहीं कर सकते. द मोस्ट फेमस इरैशनल नंबर इज पाई. नाउ पाई को आप बोलेंगे सर पाई की वैल्यू को हम 22/7 लिखते हैं, विच इज p by q form. Please understand this is an approximation. It's not even a very good approximation. So I think 22/7 by 8th or 9th digit it gives away. 22/7 does not equal to pi anymore. So this is a good example. Another example is root of 2. Root of 2 is a very popular irrational number. मैंने पहले भी डिस्कस किया. root 2 is a very important number. कैट में हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आप रूट 2 का कंसेप्ट समझ जाएंगे, आपने वो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस, यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व दिस. सो दिस इज व्हाट इरैशनल नंबर्स आर. रियल नंबर्स, all of this combined are real numbers. So just look at the tree once again. ये देखिए, ये हमारा ट्री था. रियल नंबर से यहाँ नीचे तक ये टॉप डाउन था. मैंने आपको नेचुरल नंबर से ऊपर की तरफ समझाया है, बिकॉज दैट इज हाउ द नंबर्स हैव इवॉल्व्ड एक्चुअली. सो दैट वाज द आइडिया. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट. नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस रैशनल नंबर्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो देखिए ये नंबर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर में एक पैटर्न है यहां पे. आप देख सकते हैं एक पैटर्न है 272727 बार बार रिपीट हो रहा है. व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस? द आइडिया इज कि बहुत बार ऐसा होता है कैट में कि एक नंबर आपके पास डेसिमल में है, पर अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. फ्रैक्शन का क्वेश्चन, उसमें एक नंबर की लिमिट्स दी हुई है दो डेसिमल के बीच में. जल्दी से आपको क्लिक करना चाहिए कि ये डेसिमल क्या फ्रैक्शंस हैं, सो दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आप रेंज देख सकें. सो लेट्स से देयर इज अ नंबर रिटर्न, जस्ट टेकिंग एग्जांपल. लेट्स से द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद m and n are two integers which are between 0.232323 and 0.888888 for whatever reason. If you can convert those numbers into fractions quickly, I guarantee you will be able to solve the problem easier. अगर वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो. So that is the idea. Again, I am reiterating my point. डायरेक्ट 0.2727 को p by q फॉर्म में कैसे लिखना है, that will not be the question. But if you are able to do it like this, it will help you solve that problem much quicker and without using the calculator. That is the idea. आइए देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू में. सो पी बाई क्यू फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है. ये टेक्निक आपने अपने स्कूल्स में भी पढ़ी होगी पहले. द आइडिया इज वी कन्वर्ट दिस इनटू अ नंबर विच कैन बी डन सम ऑपरेशन ऑन. दैट इज ऑलवेज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो टू डिराइव रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स. हमको करना कुछ नहीं है. लेट्स से x इज इक्वल टू 0.27. मैं थोड़ा सा गैप देके दिख रहा हूँ, उसका आपको अभी पता चल जाएगा ऐसा क्यों है. We put a bar कि this is the pattern that is repeating. We know that there are two digits repeating. So the idea is we multiply this x by 100. 100x will be what? 27.272727 till infinity. Right? अब हमको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है.
99x is equal to 27. This implies that x will be equal to 27 by 99. इसको ऑब्वियसली किससे डिवाइड करेंगे? 9 से, which will be equal to 3 by 11. So this is the value of x, right? जैसे हमने निकाला कि कैसे x can be written in the form of p by q. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो तरीका है करने का, ये मैथमेटिक्स में बहुत बार आपने पहले पढ़ा होगा। द आइडिया इज वेरी सिंपल, वी मेक द नंबर ऑपरेशनेबल, कि उसके ऊपर हमको कोई ऑपरेशन करना है, कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, दो इक्वेशंस क्रिएट करने हैं। ये आगे भी हम एक दो बार यूज करेंगे, इसका कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है कैट के लिए। आई जस्ट वांटेड टू शो यू हाउ दिस वर्क्स। द आइडिया अगेन इज वेरी रेयरली वुड यू यूज टू कैलकुलेट कि ये 0.2727 नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। दैट इज नॉट द आइडिया हेयर। द आइडिया इज टू यूज इट इन अदर एम्बेडेड क्वेश्चंस। एम्बेडेड क्वेश्चंस हम आगे चल के बहुत सारे सॉल्व करेंगे। एम्बेडेड क्वेश्चंस आर अ स्मॉल आइडिया कैन मेक दैट क्वेश्चन मच ईजियर टू सॉल्व। उसके ऊपर हम बहुत जल्दी आएंगे। So now that we are clear with this, let's just go and look at the general identity, how this works. It is very simple. If one digit is repeating, the answer would be A by 9. If two digits are repeating, the answer would be A, B by 99. And if three digits are repeating, A, B, C by 999. This is a very simple answer. I hope this pattern is clear. The question becomes, what if there are digits which are non-repeating? तब सर हम क्या करेंगे? Let's look at that. ये देखिए, the number is 0.2363636. 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अब what is the solution for that? इसको हम जल्दी से देखते हैं। x is equal to 0.2363636। ये मैं बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अदरवाइज आपने एक बार बार लिख दिया, इट इंप्लाइज कि 36 रिपीट हो रहा है। ये बार मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन दिखाने के लिए कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। व्हाट वी डू इज, फर्स्ट हमको 2 को बाहर लेना डेसिमल के, तो वी डू 10x बिकम्स 2.36 बार, करेक्ट, बिकॉज 2 बाहर आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया। अब हमको ये 36 को ही बाहर लेना है, अदरवाइज माइनस नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इस 10x को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, सो दैट बिकम्स 1000x इज इक्वल टू 236.36 बार। कैन यू सी दैट? हमने ये जो 1000 है, दिस इज बेसिकली 10x का जो एग्जांपल है, उसमें 36 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उनको बाहर लेने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 1000 एंड दिस इज नंबर। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1000 माइनस 10 इज 990x एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 236 माइनस 2 विच विल बी x इज इक्वल टू 234 बाय 990। दिस इज द आंसर। अब अगर आप इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बहुत सिंपली आप देख सकते हैं, x में न्यूमरेटर क्या आएगा p बाय q फॉर्म में, इट विल बी दिस होल नंबर 236 बेसिकली नॉन रिपीटिंग प्लस एक बार रिपीटिंग दिस नंबर माइनस दिस नंबर 2 डिवाइडेड बाय 990। द नंबर ऑफ डिजिट दैट आर रिपीटिंग उतने 9 और जितने नॉन रिपीटिंग उतना 0। दिस इज अ वेरी जनरल फॉर्म। सो फॉर अ नंबर लाइक 0. Let's call this a capital ab, what will the number will the x in p by q form will be a small a b minus capital A। हमारे केस में क्या होगा, 236 माइनस 2 डिवाइड बाय 990। 0 क्यों? क्योंकि एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और 99 क्यों? क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसको अगर आप लिख लेंगे, इसको अगर आप समझ लेंगे, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, ताकि यू अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, बट उसको कभी आपको कैट में यूज नहीं करना होगा। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, इट विल बी फुल एंड फाइनल। चलिए लेट्स गो अहेड। ये नंबर भी है अगेन 453 53 53। क्या हमने आंसर निकाला था? वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू p बाय q, जहां पे p विल बी इक्वल टू 453 माइनस 4 और डिनोमिनेटर क्या आएगा, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 9 और 9, 2 डिजिट रिपीट हो रही है 9 और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही 0। दिस विल बी द आंसर। ये पैटर्न आप इसको याद कर लीजिए। डिराइव करने का लॉजिक ये था कि आपको दिख जाए कि ये कैसे आया। वंस यू हैव सीन इट, नाउ यू कैन कमिट टू मेमोरी। ग्रेट। नाउ वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द मैटर।
सी नंबर्स हमने पढ़ा क्योंकि नंबर्स आर द बेडरॉक ऑफ क्वांट, बट फ्रैक्शंस इज वेयर वी स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन दोज नंबर्स। फ्रैक्शन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत कंफ्यूज आते हैं सर इसमें डिविजर रेशियो ये सब, नेवर एवर थिंक अबाउट इट। एवरी टाइम यू थिंक ऑफ फ्रैक्शन थिंक ऑफ अ पिज्जा, दैट्स इट। आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कैसे हम ऑपरेट करेंगे वो भी मैं इसी पे सिखाता हूँ। द आइडिया इज कि फ्रैक्शन मतलब आपको कितना पार्ट मिला। अगर मेरे भाई ने पिज्ज़ा मंगाया, मैंने 5 खाए और उसने 3 खाए, तो मुझे 5/8 मिला, उसको 3/8 मिला। दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑलवेज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। तो चलिए अब फ्रैक्शंस देखते हैं कि कैसे दे वर्क। द आइडिया इज वेरी सिंपल, थिंक ऑफ अ पिज्जा एवरी टाइम। द आइडिया इज फ्रैक्शंस आर पार्ट। मान लीजिए इस पिज्जा में से आई टुक 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स मैंने लिए। तो ये 5 पार्ट्स हो गए मेरे, 3 हो गए किसी और के, टोटल हो गए 8। हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग इज जो होल है उसका कितना परसेंटेज, उसका कितना पार्ट मुझे मिला। आई गॉट 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8, सो 5/8। somebody else got 3 parts out of 8, 3/8. the total is 8/8 because total parts are 8, which is equal to 1 and which is equal to 100%। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। आगे जब हम परसेंटेजेस सॉल्व करेंगे, परसेंटेजेस एक टॉपिक है जिससे कैट में एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एंड बहुत बार परसेंटेजेस के क्वेश्चन जो हैं दे आर सॉल्व बिकॉज ऑफ फ्रैक्शंस। इसके ऊपर हम आएंगे आगे की लेक्चर सीरीज में, बट ये आइडेंटिटी आप प्लीज कमिट टू योर मेमोरी। व्हाट इज 1? 1 इज होल। व्हाट इज 100%? 100% इज होल। आपको अगर ये याद रहेगा, इट विल बिकम वेरी इजी टू कंसेप्चुअली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अब नाउ वी कम टू फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। उन ऑपरेशन से पहले मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूं प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स का। द आइडिया इज वेरी सिंपल, P/Q इज अ फ्रैक्शन, बट P/Q में प्रॉपर कब है, इम्प्रॉपर कब है, मिक्स कब है। प्रॉपर कब है? जब हम वो होल और पार्ट वाली जो आइडेंटिटी है उसको केटर करते हैं, मतलब कि P इज लेस देन Q। बेसिकली पिज्जा में 8 पीसेस थे, 5 किसी ने लिए, तो 5/8 becomes a proper fraction. When the numerator is less than the denominator, it becomes a proper fraction. Improper कब है? जब it is P greater than Q. The idea is कि यहाँ पे होल जो है वो 1 से बड़ा है। एक पिज्जा का मैंने एक पूरा पिज्जा ले लिया, उसके बाद जो अगला पिज्जा आया उसके भी कुछ पीसेस किसी ने ले लिए, that total will be greater than 1. So P/Q will always be greater than 1. तो जब होल को 1 से ज्यादा रखना है, जब 1 से ज्यादा नंबर काउंट करने हैं, तब ये हैंडी आता है। और मिक्स क्या है? मिक्स इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर P becomes less than Q. तो लेट्स फॉर एग्जांपल 5 पिज्जा है, 5 पिज्जा में से 4 किसी ने ले लिए, जो एक पिज्जा उसके भी 5 पीसेस में 2 पार्ट ले लिए, तो वो नंबर हो जाएगा 4/2/5, राइट। अगर ये P/Q इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखते तो हम क्या लिखते? 22/5। तो 22/5 एंड 4/2/5 आर इंटरचेंजेबल। प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज एन आइडेंटिटी। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 नहीं है, ये गलती लोग करते हैं, स्कूल कॉलेज में तो होती है, पर कभी कभी बहुत जल्दी जब आप कैट में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी क्लियर, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। So improper and mixed fractions are interchangeable. Proper fraction is where we are talking about the whole में से कुछ पार्ट निकल गया, that is what we are talking about. Now this is where we talk about the CAT examination. मैंने आपसे पहले भी कहा कैलकुलेटर का यूज आपको मिनिमाइज करना है। What I want you to do is remember all these numbers. मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, आप देखिए can you remember this or not. 1/2 is 0.5, is that clear? 1/3 is 0.33, 1/4 is 0.25, 1/5 is 0.20, 1/6 इंटरेस्टिंगली कई बार इसको लोग क्या करते हैं 0.15 ले लेते हैं सर, 5 into 15 into 6 is 90, क्लोज अप्रोक्सीमेशन। कैट के लिए दैट इज नॉट अ क्लोज इनफ अप्रोक्सीमेशन। 1/6 is 0.1667। प्लीज रिमेंबर दिस। 1/7 क्या है? 0.1428, दिस इज 1/7। 1/8 क्या है? 0.125। 1/9 क्या है? 0.111। 1/10 ऑब्वियसली 0.1, और 1/11 क्या है?
0.0909। आप देखिए कि 1/9 और 1/11 आर काइंड ऑफ मिमिकिंग ईच अदर, दे आर काइंड ऑफ द मिरर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कभी कभी कैट में आपको काम आ सकता है। द आइडिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको प्लीज कमिट टू मेमोरी। ये फ्रैक्शंस के नंबर, क्यूब्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, प्राइम अप टू 1000, यू हैव टू प्रैक्टिस देम एवरी डे। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस। द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि जब आप 3/4 देखें, यू डू नॉट थिंक ऑफ डिविजन। वो जो हमने नंबर्स याद किए, वैल्यू डेसिमल्स याद की, उसका लॉजिक है कि जब आप 3/4 देखें, what should come to your mind is not 3/4. What should come to your mind is equals to 3 into 1/4, which will be equals to 3 into 0.25, which will be equal to 0.75. आप लोग कहेंगे सर ये बहुत इजी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज इजी। द आइडिया इज व्हाट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। द आइडिया इज जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखें, नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर है जिसका आपको फ्रैक्शन याद है, डेसिमल फॉर्म याद है, आप जल्दी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज आइडिया। मैं आपको करके दिखाता हूं व्हाट आई मीन बाय दैट। 2/7, 1/7 क्या है? 0.1428। उसको डबल कर देंगे, नंबर क्या आएगा? 0.283। दैट विल बी नंबर 2/7। आपको 2 को 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि 2 ज़ा 14, फिर 6 बचा, उसमें 8 ज़ा 56, वो नहीं करना है। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट हेयर। 5/8 कितना है? 8 कितना है? 0.125। 5 into 12 कितना होता है? 60। तो 5 into 0.125 करेंगे तो आप 62.5 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 0.625। ये जल्दी जल्दी आपको अपने माइंड में करना है। दैट इज द आइडिया। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं ऑन अ पर्पज दैट यू शुड ऑल्सो ट्रेन योर माइंड लाइक दैट। द आइडिया इज नॉट टू टेल यू कि 5/8 क्या था, वो आप जल्दी से फाइंड कर लेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। द आइडिया इज टू स्किप दैट 1 सेकेंड। 5/8 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.125, 62.5। आपको ये याद होना चाहिए। रादर देन आप look at a fraction, think of multiplication, not division. That is all that I want you to do here. 5/11, 11 हमने देखा क्या था? 1/11, 0.090909। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0.454545। सिंपल, दिस इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। 7/9, वेरी इंटरेस्टिंग। 1/9 क्या था? 0.1111। किसी भी चीज को 9 से डिवाइड करना, 0.7777। इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हैं 9 into 7 विल बी 63, फिर 7 बच जाएगा, रिपीट होता जाएगा, वही आंसर आ जाएगा 0.7777। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द आइडिया इज नॉट फॉर आई टू टीच यू डिविजन, बट द आइडिया इज यू स्टार्ट थिंकिंग विच विल बी बेनिफिशियल इन अ वे इन द कैट एग्जामिनेशन। वो इस सीरीज का आइडिया है। एक और फटाफट देखते हैं। 5/9, अगेन 1/9 इज 0.1111 मल्टीप्लाइड बाय 0.5555। 7/4, 7/4 बहुत इंटरेस्टिंग है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए। 1 एंड 3/4, तो 1.75 हो जाएगा। अगेन वेरी इजी। 44/5, अगेन वेरी इजी। इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 8 and 4/5, 1/5 कितना? 0.2। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8, द आंसर इज 8.8। वेरी सिंपल। 55/99 बहुत सिंपल है। इट बिकम्स 5/9 which is the same thing, 0.5555। प्लीज, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप जब भी फ्रैक्शन देखें, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक और चीज याद रखिएगा, मैं जब ये मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब एक कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। कई बार फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्चुअल होता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे इस लेक्चर के एंड पे। देयर इज अ कैट लेवल क्वेश्चन दैट आई हैव केप्ट, उसको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे सिर्फ नंबर की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। Now this is where we talk about operating on fractions. मैंने जैसा कि बताया कि फ्रैक्शंस का जो रियल इंप्लीकेशन है वो होगा टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह में, कई बार परसेंटेजेस में। बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कितने नंबर टाइप के नंबर इसमें फिट आ सकते हैं। कई बार कैट में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। बहुत बार आप कैट में क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, उसमें मोस्टली कंपैरिजन होता है, क्या कम ज़्यादा हो सकता है, इस रेंज में आ सकता है, कितने नंबर इस रेंज में। उस टाइम पे आपको ये बहुत यूजफुल आएगा। द आइडिया इज बेसिकली कि अगर p/q फॉर्म में एक नंबर है, उसको मैं चेंज कर देता हूं p+k और q+k में, तो विच नंबर इज बिगर। दैट इज द आइडिया। सो इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। एक है कि जब p/q इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब p इज लेस देन q, बेसिकली p/q इज लेस देन 1। सो देन व्हाट इज द राइट ऑपरेटर हेयर? इज इट लेस देन, इज इट ग्रेटर देन, और इज इट इक्वल टू?
ना बहुत सारे ट्रिक्स आपको सिखाते हैं लोग इंटरनेट पे, बहुत सारे ट्रिक्स वाले लोग हैं जो कहते हैं जल्दी जल्दी ट्रिक्स सीखो। आप इसको एक सेकंड दिमाग लगा के सोचिएगा और उसके बाद आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू है। P by Q, P is less than Q, ये है। लेट्स से द आंसर इज, द नंबर इज 2/5, 2 इज लेस देन 5। मैंने 2 में ऐड किया 3, वो बन गया 5, 5 में ऐड किया 3, वो बन गया 8। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर हेयर? द आंसर इज कि मैंने 2 में 3 ऐड किया तो इट वेंट अप बाय सम परसेंटेज, 5 में 3 ऐड किया इट वेंट अप बाय सम परसेंटेज, लेकिन दिस परसेंटेज हायर। तो न्यूमरेटर का इंक्रीज ज्यादा हुआ है, डिनोमिनेटर का इंक्रीज हुआ है पर कम हुआ है। सो दिस रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर, रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर। आप साइन पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर, दिस इज द साइन। आपको साइन को याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो चीज आप दिमाग में मेमोरी में सेट करें वो एक लॉजिक के साथ सेट करें, अदरवाइज अगर आपकी मेमोरी ने आपको धोखा दिया बहुत गलत हो सकता है एग्जाम में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। लॉजिक बहुत सिंपल है, P by Q, P इज लेस देन Q, सेम नंबर से ऐड किया तो P गोज अप हायर, Q गोज अप बट लेस, सो द रिजल्टेंट नंबर इज मोर, सिंपल। अब ये देखिए इसमें इम्प्रॉपर है, सेम लॉजिक अप्लाइज, P ऑल्सो गोज, न्यूमरेटर गोज अप, Q ऑल्सो गोज अप, बट Q जो है वो P से कम है, राइट, सॉरी P इज ग्रेटर देन Q है, तो P भी ऊपर गया, Q भी, डिनोमिनेटर भी ऊपर गया, पर ये कम ऊपर गया, तो इसमें आइडेंटिटी बदल जाएगी, तो रिजल्टेंट नंबर इज लेस। दैट इज द आइडिया। आपको ये साइन याद रखने की जगह लॉजिक याद रखना है कि न्यूमरेटर गोज अप बट डिनोमिनेटर गोज अप मोर एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर इज लेस। दैट इज हाउ यू डू इट। आइए हम बहुत ही इजीली एक कंपैरिजन कर लेते हैं। फ्रैक्शन में आप सबको पता है कि कंपैरिजन का जरूरी जो होता है वो मोस्टली टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस में है। कंपैरिजन जो है कभी भी आपको कैट में का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 12 is 48, 9 into 5 is 45, 48 is greater than 45, the answer is this. It is very very simple. आइए ये करके देखते हैं सॉल्यूशंस बहुत जल्दी से। 3/5 and 2/3, 3/5 and 2/3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 9, 5 into 2 10, 10 ज्यादा है तो 2/3 इज ग्रेटर। आप विजुअली भी देख सकते हैं 3/5 इज 0.6, 2/3 इज 0.66, ऑब्वियसली ज्यादा है। 12/8 एंड 5/3 दोनों इम्प्रॉपर हैं, फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 36 यहाँ 40, दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। 26/35, 32/41, इतना ईजी नहीं है मल्टीप्लाई करना। आपको क्या देखना है, आपको आइडेंटिटी देखनी है जो हमने सबसे पहले देखी थी। 26/35 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज P इज लेस देन Q, वी आर इंक्रीजिंग इट बाय द सेम नंबर 6। जब हम सेम नंबर 6 कर रहे हैं तो दिस नंबर इज, रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर, करेक्ट। आपको मैं एक बार वो आइडेंटिटी फिर दिखाना चाहता हूं, ये देखिए रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर। प्लीज डोंट रिमेंबर द साइन, रिमेंबर दैट द रिजल्टेंट नंबर इज लार्जर। दिस इज द आइडिया। नाउ दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू सॉल्व दिस इन 1 सेकेंड। कैसे पॉसिबल है? इट्स वेरी सिंपल। दिस नंबर इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस नंबर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, दिस इज लेस देन 1, द आंसर इज सिंपल। See, this is what I mean कि CAT में it is not just your calculation, it is your aptitude, it is your observability capacity that is being tested. इतना बड़ा नंबर देख के आपको सोचना है कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ कैच है और जल्दी उसको कैच करना है। You don't have to go to calculator or calculating on the paper first. That is the whole idea of getting a good percentile in CAT exam. चलिए अब हम फ्रैक्शन के एडिशन देखेंगे बहुत जल्दी से। इसका एडिशन कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है, 4 into 12 48, 5 into 9 45 डिवाइड बाय 9 into 12, दिस विल बी द आंसर। ये हमने स्कूल और कॉलेज में देखा हुआ है। द आइडिया इज दैट वी नॉर्मलाइज द डिनोमिनेटर। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्यों इंटरेस्टिंग है? जब हम टाइम वर्क सॉल्व करेंगे, जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, ये आइडेंटिटीज बहुत काम आती हैं। What you can do is you can remember these in the sense, मैं memorization के लिए नहीं बोल रहा हूँ, I just mean कि ये मूवमेंट कैसे होता है। So let's say P by Q और A by B is divided by C, तो ये B नीचे आ जाएगा,
एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 2/3 इज डिवाइडेड बाय 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। बेसिकली दिस इज अ कन्वेंशन दैट वी फॉलो इन मैथमेटिक्स। अगर पहले किसी ने और कुछ कन्वेंशन डिसाइड किया होता हम वो फॉलो करते। द आइडिया इज सिंपल, यू जस्ट थिंक कि ये b कम्स डाउन। दिस इज अनदर वे, जब a होल नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन तो द डिनोमिनेटर गोज अप। यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे आया, ये डिनोमिनेटर नीचे है, डिनोमिनेटर गोज अप। दैट इज सिंपल वे टू रिमेंबर दिस, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ओके। एंड द इन दोनों की एक कंपोजिट एंटिटी है, a बाई बी। ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आया और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फैक्टर। इसको आपको कमिट करने की जरूरत नहीं है मेमोरी में, डोंट थिंक अबाउट दिस। इन दोनों को आप कमिट कर लीजिए, जब फ्रैक्शन ऊपर है डिनोमिनेटर कम्स डाउन, जब फ्रैक्शन नीचे है डिनोमिनेटर गोज अप, दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल, डोंट थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डोंट कंफ्यूज इट, जस्ट ऊपर नीचे याद रखेंगे, विल गेट द सॉल्यूशन फास्ट। ब्रिलियंट। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, 21 इज द बेस ऑलरेडी, सो नीचे हम लिखेंगे 21। 7 को 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 इंटू 3 प्लस 21 6 कॉन्स्टेंट रहेगा, 7 इंटू 3 8 रहेगा, 8 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 24 बाय 21 विच इज द आंसर 39। इट इज 39 बाय 21। आंसर इज वेरी 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 सिंपल, okay. Now let us look at a slightly more difficult problem. So now let's look at a slightly more complicated problem. इसमें आपको लग रहा होगा कि such a daunting task इन सबका LCM निकालना है, but no, what way is being tested is your aptitude and observability. The idea is very simple. We club जहाँ का LCM निकालना is easy. 4 and 8 is very easy. तो 1/4 को अगर मुझे डिनोमिनेटर 8 करना है, it becomes 2/8. 3/8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/8। सो हमारा एक टर्म आ गया 5 डिवाइड बाय 8 प्लस नेक्स्ट कौन सा टर्म है 3 एंड 9। इट्स वेरी इजी, 3 को अगर डिनोमिनेटर 9 करना है मल्टीप्लाइड बाय 3 इट बिकम्स 15। तो 15 प्लस 11 बाय 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5/8 प्लस 26 बाय 9 प्लस हमारे पास क्या बचा 8/6। नाउ इट्स सच अ सिंपल थिंग, इन सब का एलसीएम क्या है 72। हम इसको कैसे लिखेंगे 5 8 9 से 72, सो दिस विल बिकम 45 प्लस 9 8 जा 72, इट विल बिकम 26 इंटू 8 एंड प्लस 8 इंटू 12 96 डिवाइड बाय 72। ये आंसर आ जाएगा आपका 349/72। अगेन प्लीज समझिए, द आइडिया इज टू टेल यू कि एक बड़ा नंबर देख के आपको उसको डॉन्टिंग फील नहीं करना है। डोंट गो फॉर द कैलकुलेटर, डोंट गो फॉर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द बेसिक्स नॉलेज के हिसाब से कि एलसीएम निकाल के मैं सबका करूंगा। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द नंबर, फाइंड अ पैटर्न, सॉल्व फॉर दैट पैटर्न, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, कंपेयर दीज। द आइडिया इज आप इन सबका अगेन you can do that a by b form plus k वगैरह, you can do that, but if you look at it very simply, 3/5 क्या है 0.6, 3/5 is 0.6, 6/8 क्या है 6/8 is 3/4, 0.75 क्यों है 1/4 0.25 into 3, 9/11 क्या है 1/11 होता है 0.09, 0.09, 0.09, 9 into 9 is 81, so the answer is 0.81 बार, क्योंकि 81 रिपीट हो रहा है। 12/14 क्या है 6/7, 6/7 क्या है 6 into 0.1428, तो वो कितना आ जाएगा 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को कितना आएगा 86 समथिंग, 0.85842 आएगा। ये रिपीट नहीं होगा, दिस रिपीट इज रॉन्ग, this will become an irrational number 0.842 something। 15/17 कितना होगा, obviously it will be 0.88, जल्दी हो गया। 18/20 कितना होगा 0.9। ये देखिए बहुत तेजी से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस एज अ मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट एज अ डिवीजन। ग्रेट।
Now this is something also that you should try at home. The idea is you have to keep trying different techniques जो आपको सही लगती है. अगर इसमें आपको लगता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन p बाई क्यूब में हम k ऐड करके नंबर निकालेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू यू कैन डू दैट. अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मैं सिंपली डेसिमल में करके कर सकता हूँ, यू कैन डू दैट. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन by yourself in both formats and then tell me what is easier for you, and I would expect the answer in the comments. उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि अगले वाले सेशंस में किस टाइप की टेक्निक्स में और दिखाऊं. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस एंड यू कैन टेल मी कि इज दिस आइडिया ऑफ यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टू डिराइव factors into decimal is great or not, and whether it works for you or not. I suppose that is the most efficient way to do it. पर अगर आपको लगता है कि इसको कुछ और इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. नाउ एज प्रोमिस्ड, दिस इज वेयर द रबर मीट्स द रोड. दिस इज अ CAT क्वेश्चन. It will be qualified as a number system questions. The problem with that classification is कि number systems is so wide that there is no end to it. अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको लगेगा सर इसमें ना फ्रैक्शंस है, ना नंबर सिस्टम्स है, ना रियल नंबर है, ना इंटीजर है, ना कुछ है. बट स्टिल ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग अभी बनाई है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऐसे नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट्स में भी कराता रहूंगा. हम ब्रीफ वीडियोस बनाएंगे जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैट के क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड नॉट बाय कैलकुलेशन बट बाय एप्टीट्यूड. सो जस्ट फॉर फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स गो विद दिस. रीड दिस क्वेश्चन. In a 6-digit number, it's a 6-digit number, we all understand that. The sixth, that is the rightmost digit, he has clarified the rightmost digit is the sum of the first 3 digits. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, let's make a 6-digit number. 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. Rightmost digit is the sum of the first 3 digits. So let's write A, B, C. So this becomes A plus B plus C. Okay. The 5th digit is the sum of the first 2 digits. So this becomes A plus B. ठीक है. The 3rd digit is equal to the first digit. तो C basically becomes A. तो अब हम इसको फिर से लिखेंगे A B A. इसके बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है. A plus B. तो यहां पे A plus B रहेगा एंड यहां पे रहेगा a plus b plus c and c is equal to a, so this becomes 2a plus b. Okay. Now he's saying the second digit is twice the first digit, so b is actually 2a. So अब क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पढ़ने के बाद a 2a, this is a. इसके बारे में भी कुछ उसने बताया नहीं है. a plus 2a is 3a and 2a plus a is again 2a plus 2a is 4a. राइट, बिकॉज b कितना है, b is 2a, तो b को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस बिकम्स 4a. एंड द 4th डिजिट इज द सम ऑफ द 5th एंड द 6th डिजिट. जो 4th डिजिट है इज द सम ऑफ द 5th एंड द 6th डिजिट, मतलब 3a प्लस 4a, तो यहां पे आ जाएगा 7a. सो दिस इज द नंबर. सिंपल. ये मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं, इफ यू हैव योर विट्स अबाउट इट, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू आंसर दोस. नंबर सिस्टम्स में बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, यू कैन स्किप. बट इन मोस्ट केसेस नंबर सिस्टम के जो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, दे आर सॉल्वेबल बाय ऑब्जर्वेशंस देमसेल्फ. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा गाड़ी मैच करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई मीन. द क्वेश्चन इज देन लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द 4th डिजिट इज व्हाट, दैट इज व्हाट इज आस्किंग. 4th डिजिट क्या है, 7a. अब आप मुझे बताइए a 2a a 7a 3a 4a, these all need to be the largest. a क्या हो सकता है, कम से कम 1, बिकॉज कोई भी नंबर जो है that cannot be greater than 9. So the answer is 7a 7. This is the answer of the question. I hope आपको ये समझ में आया होगा. मैंने ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल इसलिए लिया बिकॉज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आर मोस्टली सॉल्व बाय ऑब्जर्वेशंस. माई होल अटेम्प्ट हियर इज टू टीच यू, to tell you how you should be observing these questions and not go straight to the calculator or the calculation. Last but not the least, this is the problem that we will solve tomorrow. हमने पिज़्ज़ा की बात की थी फ्रैक्शन में, अब हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं. ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग ऑफ पैटर्न्स, और कैसे उन पैटर्न्स को सॉल्व करना है
और उन पैटर्न्स को कैसे हमको कैलकुलेट करना है, कितनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन विल फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग योर एप्टीट्यूड. It will also form the basis of permutation and combinations and probability as well, which will come to in a couple of weeks. The idea is to split this chocolate into individual parts, and how many minimum number of cuts do you require for that. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाता हूं. Let's say this is a chocolate in 4 parts. तो आपको कितने पार्ट में, कितने कट्स में हो जाएगा. आपने यहां से कट किया तो दिस बिकम्स 2 पार्ट्स, 2 वर्टिकल पार्ट्स, और फिर आपने यहां से कट किया तो ये बिकम्स सेपरेट सेपरेट. तो हमने टोटल कितने कट्स लगाए, एक कट ये, एक कट ये, एक कट ये, टोटल 3 कट्स. सो 4 के लिए हमको लगाने पड़े 3 कट्स, मतलब 2x2 मैट्रिक्स के लिए 3. कैन यू जनरलाइज दैट? दिस इज अ चैलेंज फॉर यू टू वर्क फॉर इट टुमारो. कल हम एक बहुत छोटी सी वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे. अगेन द आइडिया इज नॉट टू लर्न मैथमेटिक्स, बट आइडिया इज टू डेवलप योर एटीट्यूड फॉर द कैट एग्जामिनेशन. आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा. आई वांट टू सी यू बैक अगेन हेयर डे आफ्टर टुमारो. हम ये अल्टरनेट डेज पे कंटिन्यू करेंगे सीरीज. माई रिक्वेस्ट टू यू सिंपली, जो भी आज आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लीजिए. टेक हाफ एन आवर, सॉल्व दिस फ्यू क्वेश्चन, एंड दैट कॉन्सेप्ट विल देन सिट इन योर माइंड फॉर एवर. एक और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है. अब 97 डेज बचे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव एटलीस्ट 4 to 5 मॉक्स एवरी वीक. अगर आप पूरा का पूरा मॉक नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट सेक्शन वाइज मॉक जरूर कीजिए, सो दैट यू कंप्लीट 4 or 5 मॉक्स इन अ वीक. दैट इज द ओनली वे टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन एक्चुअल सिनारियोज एंड गेट अ ग्रेट परसेंटाइल. आई होप आप लोग फिर से आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए. आई होप आप इस वीडियो को यूज करेंगे टू बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.